alphabetical order by the name of the institute. Good afternoon to all. So that we all know there's been very challenging managing the campuses, the labs, the students and the staff and everything going in COVID-19 times. So we are very fortunate to have with us today Honorable Minister of Science and Technology and Health and Family Welfare, who of course has the best of insights into appropriate behavior and appropriate management during the times of COVID-19. So before I request him to share his instructions and insights with us, I would request all of us here to make a very quick introduction, say your name and the institute. Okay. Yeah, we right. So what I will do is I would go in alphabetical order by the name of the institute. So I would say the name and then you can say hello. Agharkar Research Institute, Dr. Prashant Dalke-Falkar is there. Please also mute yourselves. I think you are muted. Namaskar sir, I am Prashant Dalke-Falkar. I am attending the meeting sir. Aryabhatta Research Institute for Observational Sciences or ARIES, Dr. Deepankar Banerjee. Namaskar. Hello sir. Yes, yeah, this is Deepankar Banerjee here. Yes, and my hand. It is not visible. Yeah, make screenshots here. Because all of them would not be visible, but I think speaker should come. Yeah, I'm Deepankar Banerjee here. Can you hear me? Yeah. We can see happy Deepankar Banerjee. We have Birbal Sahni Institute of Paleo Sciences, Dr. Vandana Prasad. Namaskar sir, this is Vandana. Can we see you, Dr. Vandana Prasad? Yes. Okay, we can't see her. Sir, this institute, Birbal Sahni, is doing the highest number of PCR tests in UP. So even though it's a research institute, they have taken a lot of initiative to put in all their machines and use. Bose Institute, Dr. Uday Bandyopadhyay. Bose Institute, are you there, Dr. Bandyopadhyay? I will come back later, So hopefully I found your voice and picture by then. Are you there? But I think he's muted or something, right? Yeah, he is there. Center for Nano and Soft Matter Sciences, Dr. G.U. Kulkarni. He's there, sir, the one who's moving. Dr. Kulkarni, you have heard us? He's mute, okay. We are mute? Why are we mute?
No, but can you unmute me, please? Okay, good. Okay, so Center for Nano and Soft Matter Sciences, Dr. Kulkarni, who has additional charge now. Good afternoon, Honorable Minister Dr. Harshvardhan Ji and GST Secretary Professor Sharma. Good afternoon. Indian Association for the Cultivation of Science, Professor Shantanu Bhattacharya. Good afternoon, Honorable Minister for Science and Technology and Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan Ji, and our Secretary, Professor Ashutosh Sharma Ji. Good afternoon. Thank you. Indian Institute of Astrophysics, Professor Annapurni Subramaniam. Namaskar ji. Hello to the Honorable Minister and Professor Sharma. This is Annapurni Subramaniam from Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. Indian Institute of Geomagnetism, Professor Sai Ramesh. I saw it sometime back. Professor Ramesh, are you there? Okay, we'll come back. If you come back anytime, let us know. International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, Dr. G. Padmanabhan. Namaskar, Honorable Minister and Secretary. Institute of Nano Science and Technology, Professor Amitava Batra. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. This is Amitava Batra from Institute of Nano Science and Technology. And good afternoon. Institute of Advanced Study in Science and Technology, Professor Harimba Bailong. Namaskar, good afternoon, sir. Honorable Minister and Secretary GST. Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Dr. Kulkarni. Dr. Kulkarni here again. Good afternoon. Thank you. So he has additional charge of another Bangalore institute. Raman Research Institute, Professor Raghunathan. Good afternoon, everyone. Raghunathan here. S.N. Bose National Center for Basic Sciences, Professor Samit Kumar Ray. Good afternoon and namaskar, sir. Shri Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, Dr. Asha Kishore. Asha Kishore here, sir, from Shri Chitra Tirunal Institute. Good afternoon and thank you for the opportunity to interact with me today. Wadia Institute of Himalayan Geology, Dr. Kalachand Sen. Sir, good afternoon, Honorable Minister, Secretary. National Innovation Foundation, Dr. Vipin Kumar. Good afternoon, sir. Good afternoon, Honorable Minister, Secretary, sir, and all. Thank you. Vigyan Prasad, Dr. Nakul Parashar. Vigyan Prasad, Dr. Parashar, you there? Usually Vigyan Prasad links work very well, but today I think it's not working good. Technology Information Forecasting and Assessment Council, or TIFAC, Professor Pradeep Srivastava. Namaskar, sir. And my regards to you and to Dr. Sharma, Pradeep Srivastava. Science and Engineering Research Board, Dr. Sandeep Verma. Namaste, sir. Honorable Minister for Science and Technology,
Namaste, Secretary DST. This is Sandeep Verma. Okay. Northeast Center for Technology Application and Reach, or NECTAR, Professor Arun Sharma. Professor Arun Sharma, are you there? Professor Arun Sharma. And all other distinguished panel, this is Arun Sharma here. Thank you. Indian National Science Academy, INSA, Dr. Chandrima Saha. National Academy of Sciences, India, Professor G. Hello, Padmanabhan. sorry, my mic was muted. This is Chandrima Shah from INSA, Honorable Minister and Professor Sharma. National Academy of Sciences, India, Professor G. Padmanabhan. Maybe if you are there, unmute yourself, sir. Indian Science Congress Association, Professor K.S. Rangappa. Sir, good evening, sir. I'm Professor Ramakrishna, General Secretary, Indian Science. Good afternoon, Honorable Minister, and good afternoon, Secretary DST, sir. I am here, sir. Indian Academy of Sciences, Professor Partha Majumdar. Professor Partha Majumdar is not able to join the meeting. I am Mahesh Chandra. Good afternoon to Honorable Minister, sir, and Secretary DST. Thank you. Indian National Academy of Engineering, Dr. Sanak Mishra. Jai to you, sir. I am representing Dr. Mishra here. I am Colonel Shobhit Roy, retired, Indian National Academy of Engineering, sir. Sir, we also have with us Surveyor General from Survey of India, because they would also benefit by this COVID-19 things. So we have Lieutenant General Girish Kumar with us. Are you there, General? Yes, sir. Yeah. Namaskar, sir. Okay. Anybody else? Yes. And also Director NETMO is with us. I don't see her. Dr. Tripti Banerjee, are you there? Sir, yes, sir. Good afternoon, sir. Honorable Minister, sir, and Secretary, sir. I am here with Dr. Energy Network. Sir, we have 100% attendance, and yes, CSIR. Do you have the list or would you? Ji, they are there. Dr. Vidyadhar. Hello, good afternoon everybody. This is Vidyadhar Mutkabi from CSIR for Paradigm Institute, Bangalore. Dr. Avinash Kumar Srivastav, Director CSIR Empuri, Bhopal. Namaste, sir. I am Avnish Srivastava from CSIR Empuri, Bhopal. Dr. N. Gopal Krishnan, Director CBRI, Roorkee. Namaskar, sir. This is Gopala Krishnan, Director Central Building Research Institute, Roorkee. Dr. Rakesh Kumar Mishra, Director CCMB, Hyderabad. Dr. Rakesh Mishra, if you are there, please unmute and say so. Else you can come back later. Professor Tapas Kundu, Director CDRI, Lucknow. I'm Rakesh. From CSIR CDRI. I am filling for Professor Kundu as he is traveling at the time. Dr. Kalai Salvi, Director CECRI, Karaikudi.
Namaskar, sir. Ali Selvi from Central Electrochemical Research Institute. Thank you. Dr. P.C. Pancharia, Director C.D. Pilani. Okay, we can come back later if you are there. Dr. KSMS Raghav Rao, Director CFTRI Mysore. Yeah, Dr. Yadav, if you are there, CFTRI. Good afternoon to Honorable Minister. This is Jadhav, Director CFTRI and the Additional Chair, sir. Director National Aerospace Laboratory. Good afternoon, sir. Dr. Muralidharan, CGCRI. He is also. Who is the acting director there? Is there anyone from CGCRI? Dr. Prabodh Kumar Trivedi, Director CIM AP Lucknow. Good afternoon, sir. I'm Prabodh Trivedi from CIM. Dr. P.K. Singh, Director CIM FR Dhanbad. Okay, so he's there. Professor. Namaskar, sir. Pradeep Singh, Simhar Dhanbad. Yes, okay. Professor K.J. Shriram, Director CLRI Chennai. Namaskar, sir. Shriram from CLRI Chennai. Namaste, sir. Dr. Harish Hirani, Director CMERI Durgapur. Yeah, now he is very happy. Yeah. Namaskar, sir. I'm Harish Hirani. Professor Satish Chandra, Director CRRI New Delhi. Professor Satish Chandra could not attend. I am Dr. Lakshmi Parameshwaran at CRRI. Dr. Anantha Ramkrishna, Director CSIO Chandigarh. नमस्कार माननीय मंत्री और माननीय महासचिव जी, CSIO चंडीगढ़ से आपको शुभकामनाएं। Dr. Kanan Srinivasan, Director CSM CRI Bhavnagar. Good afternoon, sir, and good afternoon to Professor Ashutosh Sharma. Dr. Anurag Agrawal, Director IGIB Delhi. Good afternoon, sir. Dr. Anurag Agrawal is just busy with some other meeting. So myself, Dr. Shobhit Maiti, we are representing him. So, good afternoon to everybody. Dr. Sanjay Kumar, Director IHBT Palampur. नमस्कार सर, मैं संजय कुमार पालमपुर से। Dr. Arun Bandyopadhyay, Director IICB Kolkata. Namaskar, sir. Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. I am Dr. Arun Bandyopadhyay from IICB Kolkata. I just joined last September 1st. Thank you, sir. Dr. S. Chandrasekhar, Director IICT Hyderabad. Sir, namaskar, sir. I am Chandrasekhar from IICT Hyderabad. Namaskar, Ashutosh ji. Namaskar. Dr. Srinivasa Reddy, Director IIM Jammu. Good afternoon, sir. This is Srinivasa Reddy from IIM Jammu. Dr. Anjan Ray, IIP Dehradun. आदरणीय मंत्री महोदय और सचिव जी को मेरा नमस्कार और सम्मिलित सर्वजनों को नमस्कार। प्रोफेसर आलोक धवन, डायरेक्टर IITR लखनऊ। नमस्कार सर, राहुल धवन लखनऊ से। माननीय मंत्री महोदय और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, आप दोनों का अभिनंदन। नमस्कार। प्रोफेसर सुधाश्वा बासु, डायरेक्टर IIMT भुवनेश्वर। Namaskar, sir. Good afternoon. Namaskar to Ashutosh ji also.
Dr. Sanjeev Khosla, Director IMT Chandigarh. Namaskar sir, this is Sanjeev Khosla from IMT Chandigarh. Dr. Jitendra Jadhav, Director NAL, Bengaluru. NAL, whatever. Yeah, muted, Dr. Jadhav, you're muted. Okay. Namaskar sir, Dr. S.K. Parekh, Director NBRI Lucknow. माननीय मंत्री जी नमस्कार, मैं सौरभ बारिक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से बोल रहा हूँ और माननीय आशुतोष जी आपको भी नमस्कार, धन्यवाद सर। Dr. Ashwini Kumar Nangia, Director NCL Pune. Good afternoon, Honorable Minister Ji and Professor Ashutosh. Ashwini Nangia from NCL. Dr. Rakesh Kumar, Director NIRI Nagpur. नमस्कार, राकेश कुमार from NIRI Nagpur. Namaste to everybody. Dr. G. Narahari Shastri, Director NIST Jorhat. Namaskar sir, Minister and Dr. Ashutosh Sharma, Punjab. Dr. V.M. Tiwari, Director NGRI Hyderabad. नमस्कार सर, मंत्री जी नमस्कार और शर्मा सर नमस्कार। Dr. Ajay Ghosh, Director NIST Thiruvananthapuram. Good afternoon, sir. Good afternoon, Professor Sharma. Good afternoon, everybody. I am Ajay Ghosh from CSIR NIST Trivandrum. Dr. Sunil Kumar Singh, Director NIO Goa. Namaskar, Honorable Minister sir and Secretary sir. I'm Sunil Kumar Singh speaking from CSIR. Dr. Ranjana Agarwal, Director NISCARE New Delhi. Dr. Ranjana Agarwal, Director NISTAX New Delhi. Dr. Indrajit Chaturaj, Director NML Jamshedpur. Dr. Indrajit Chaturaj, if you are there, please unmute. Dr. D.K. Aswal, Director NPL New Delhi. Dr. Aswal, are you there? You are not very far from here, so you should be there. Dr. Santosh Kapuria, Director SCRC and CMC Chennai. Namaskar sir, good afternoon. This is Santosh Kapuria from SCRC. Namaskar, Mr. Sharma. Namaskar. Dr. Kishore Srinivasan, Head URDIP Pune. Good afternoon, Honorable Minister Dr. Harshvardhan ji, and good afternoon, Professor Sharma. I am Kishore Srinivasan, Head Urgent from Pune. Thank you all. We have a full house, and I may now request Honorable Minister to tell us about the good managing practices and appropriate behavior during COVID-19. As we all know, it's been challenging times. So these insights would be very valuable. Sir, may I request? प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी और सभी हमारे डीएसटी और सीएसआईआर के जितने भी हमारे देश भर के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके सभी डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 24 घंटे से कम के नोटिस में सारे देश के सभी हमारे दोनों प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट्स के सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं के डायरेक्टर्स जो हैं वो हम लोगों के सामने हैं और सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आपकी सबकी तस्वीर देखकर और आपको
स्वस्थ देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप सबके इंस्टीट्यूशंस में कम से कम एक बार तो मेरे को जाने का मौका मिला है पिछले सालों में, और मैं देख रहा हूँ कि शायद 75-80% लोग तो अभी वही हैं जो मेरे आपके इंस्टीट्यूशन में जाने के समय डायरेक्टर थे। कुछ एक नए लोग हैं जिनका सिलेक्शन का फ़ाइल तो मैंने दस्तखत किया है, लेकिन इस तरीके से आपको मुझे शायद देखने का मौका नहीं मिला है। आपकी तस्वीर और आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुश, तो आपको सबको भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये कोविड का वातावरण थोड़ा सा ठीक होगा तो मेरी योजना तो 2020 में ये थी, मैंने 2019 में भी कहा था, लेकिन जब कहा था उस समय मुझे नहीं पता था कि 2020 में ये सारा साल हमारा कोविड में निकल जाएगा। लेकिन मैंने 2020 के वर्ष को अपनी मन की योजना में दोबारा से अपनी सारी साइंस की इंस्टीट्यूशंस को एक बार विज़िट करने की दृष्टि से, और मेरी लास्ट विज़िट के बाद से अभी तक क्या वहाँ पर गुणात्मक प्रगति हुई है, इस दृष्टि से आप सबसे मिलने के लिए मेरे मन में इच्छा थी। लेकिन ये 2020 तो पूरा कोविड में निकला, इसलिए अभी तो भगवान से यही प्रार्थना और कामना है कि 2021 में शायद अगर स्थिति में सुधार होगा तो एक बार फिर से पूरे देश में घूमकर और सभी आप सबके इंस्टीट्यूशंस में एक बार मैं दोबारा से जाना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैं गया था तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और साइंस पढ़ने के बाद तो मेडिकल कॉलेज में ही मैंने पढ़ाई की, लेकिन साइंस की पढ़ाई स्कूल में की थी। लेकिन पहली बार में भी बहुत चीज़ें समझने की कोशिश की थी, बहुत समझा था, और अभी समझते समझते लगभग 6 साल हो गए तो काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो अब जब काफ़ी कुछ समझ में आ गया है तो उसके बाद अभी मेरी जाने की ज़्यादा प्रबल इच्छा है, क्योंकि इस बार जब मैं विज़िट करूँगा तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मुझे और भी ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझने में आसानी भी होगी और उसमें आनंद भी आएगा, और शायद मैं आपको बहुत और ज़्यादा बेहतर सुझाव भी देने के लिए प्रयास कर पाऊँगा। इसलिए जल्दी ही हम लोगों का वर्चुअल के अलावा फ़िज़िकल भी मिलना होगा। इस बात के लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, कामना भी करते हैं। आज की ये जो हमने मीटिंग रखी है, ये साइंस कम और हेल्थ और कोविड ज़्यादा, उस दृष्टि से ये मीटिंग है। साइंस की तरफ से जितना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन कोविड के ख़िलाफ़ जंग में हमारे वैज्ञानिकों का हो सकता था, वो मैं समझता हूँ कि आप सब ने मिलके किया है, असाधारण तरीके से किया है। जिस लेबॉर्ट्री का जो मैंडेट था, उस मैंडेट से बाहर जाकर भी जो कुछ हम कर सकते थे वो सब कुछ हमने किया है। उन सब चीज़ों का मैं आज विस्तार से उल्लेख करने के लिए नहीं यहाँ पर मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि यू हैव ऑल रिजन टू द ओकेजन एंड डिलीवर्ड सो वेल, कि अभी जो भी कोविड के ख़िलाफ़ जंग हो रही है उसमें यूँ तो पूरी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रही है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और हमारा CSIR बायोटेक्नोलॉजी, ये सब लोग मिलकर इन्होंने बहुत
अभूतपूर्व योगदान किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई का जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त योगदान ना रहा हो। इसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं कि अभी जो हमारा प्रमुख इस समय रिसर्च चल रहा है वो वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में चल रहा है, नई कोविड के ख़िलाफ़ ड्रग के खोज के संदर्भ में चल रहा है, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स के संदर्भ में चल रहा है, या फिर नई किट्स को बनाना, वैलिडेट करना, इन संदर्भ में चल रहा है। जीनोम वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के संदर्भ में चल रहा है, वायरस के बिहेवियर को एसेस करने के संदर्भ में चल रहा है, वायरस की बायो रिपोजिटरीज़ में वायरस को सैंपल्स को इकट्ठा करके उसको सारे एकेडमिक वर्ल्ड को देना, पहुंचाना। और फिर मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से तो जो भी चीज़ें आवश्यक थी वो सारी की सारी हमारे लेबॉर्ट्रीज़ ने, जैसा मैंने कहा कि जिसका मैंडेट नहीं था। अब NAL का मैंडेट हवाई जहाज़ बनाना था, उन्होंने वेंटिलेटर भी बना दिया इस बीच में। बहुत सारे PP किट्स से लेकर और जितने प्रकार के नए तरीके के मास्क हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है इस बीच में डेवलप हुई हैं। उस दृष्टि से आप सब ने बहुत योगदान किया है। लेकिन आज जो हमने मीटिंग की है उसमें आपके उस वैज्ञानिक के रूप में योगदान से ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन में भी और सोसाइटी में भी इस समय एक लीडरशिप का रोल हाथ में लेकर, और जो एक बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने है और जिस चैलेंज को एक प्रकार से सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन की बात की है, उसके लिए सारे देश की, सारे समाज की, सारे विभागों की, सारे इंस्टीट्यूशंस की और इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स की, सबकी फ्रंट में आकर और बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि भारत में कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई की जो पहली मीटिंग है वो हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में 8 जनवरी को की थी। 6 तारीख के करीब विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइना ने इस नए वायरस के बारे में सूचना दी थी और अगले 2 दिनों के अंदर अंदर हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग की थी। उस मीटिंग को करने के बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने सारे देश के लिए हेल्थ एडवाइजरीज़ और डिटेल्ड जो कुछ सारे देश को करना है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को उपलब्ध करा दिया था। 17 तारीख जनवरी से पॉइंट ऑफ एंट्री जिसे कहते हैं सर्वेलेंस, वो एयरपोर्ट्स पर शुरू कर दिया था, कम्युनिटी में सर्वेलेंस शुरू कर दिया था, बाद में लैंड बॉर्डर्स पर शुरू कर दिया, जो सी पोर्ट्स हैं मेजर माइनर उन पर शुरू कर दिया, और लगातार एक के बाद एक जो भी ज़रूरत के हिसाब से एक्टिविटीज़ थी वो प्रारंभ की। लगभग जब पहला केस हमारे भारत में आया था 30 तारीख के आसपास जनवरी में, उसी समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये घोषणा की थी कि ये एक इंटरनेशनल कंसर्न की हेल्थ इमरजेंसी है। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रचना की थी हेल्थ मिनिस्टर के अध्यक्षता में और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ, और उसकी भी अब तक हम लोग 21 मीटिंग्स कर चुके हैं। हर स्तर पर बहुत मीटिंग्स हुई पिछले समय में। इसी 8 अक्टूबर को इस लड़ाई को लगभग 9 महीना पूरा हो चुका है और अभी हम इस कोविड के ख़िलाफ़ जंग में 10वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर और नीचे तक लगातार इस काम की मॉनिटरिंग सारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ,
स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ, चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ, भारत सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ और आपके साइंस के भी सभी लोगों के साथ ये लगातार पिछले 9 महीने से हो रही है। इस बीच में आप सब जानते हैं कि बहुत सारे इसमें पड़ाव आए हैं। उन पड़ावों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया था जब मार्च के महीने में 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पेंडेमिक का दर्जा दिया था। उसके बाद आपको वो भी दिन याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल किया और 22 मार्च को एक देश में जनता कर्फ्यू, लोगों को खुद ही प्रेरित होकर अपने घरों से बाहर ना निकलें, वो सवेरे से लेकर और रात के 9 बजे तक उसका एक एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने वो इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल किया था तो किसी को नहीं पता था कि वो 3 दिन के बाद उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं जिसके लिए वो ये इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और हमने सब ने देखा कि जनता कर्फ्यू में सब ने बहुत वॉलंटरीली, बहुत कमिटमेंट के साथ भाग लिया। और जब उन्होंने कहा कि 5 बजे शाम को घर से बाहर निकलकर देश में जो लोग कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में फ्रंट लाइन से हेल्थ वर्कर्स अपने जान को भी खतरे में डालकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको फेलिसिटेट करिए, उनके लिए जो एप्रिसिएशन का सिंबॉलिक एक्टिविटी करिए। तो सारे देश को हमने देखा कि वो घर से बाहर आके खड़ा हो गया। फिर हमने 25 तारीख को लॉकडाउन भी देखा। लॉकडाउन में भी विभिन्न फेजेस देखे और फिर देखा कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जो माइग्रेंट लेबरर्स को तकलीफ़ हो रही थी, इकॉनमी में लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो फिर धीरे धीरे करके बोल्ड डिसीजंस लिए गए, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हुई। अनलॉक के भी विभिन्न फेजेस को आपने देखा कि धीरे धीरे कैसे कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना और उसके साथ साथ जो इकॉनमी को फिर से वापस पूरी ताकत देने के लिए जो बैलेंस बनाना था वो सारा का सारा प्रधानमंत्री जी ने किया। आत्मनिर्भर भारत से पहले प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें सभी लोग जो तकलीफ़ में आए थे उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कैसे मदद किया जाए, गरीबों की उस दौरान किस तरह से मदद की जाए, माइग्रेंट लेबरर्स और दूसरे गरीबों को ऐसे 80 करोड़ लोगों को 6 महीने तक बराबर भोजन उपलब्ध कराना, उनके खातों में पैसा पहुंचाना। हेल्थ के अंदर शुरुआती दौर के अंदर ही लॉकडाउन करते ही 15,000 करोड़ रुपया हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए उपलब्ध कराया। तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, पैसा उन लोगों को बांटा, उनके लिए पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, उनके लिए दवाइयाँ, ये सारी देश में हम लोगों ने भारत से सरकार से सप्लाई करते रहे लगातार। एक लेबॉर्ट्री से और आज 1945 लेबॉर्ट्रीज़ देश के अंदर, और इसमें बहुत सारे अभी तो हमारे साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ ने भी इसमें योगदान किया कि वहाँ पर भी टेस्टिंग इत्यादि हुई। बहुत डिफ़िकल्ट काम था ये सब। और उस समय ये सब हुआ देश में जब लॉकडाउन चल रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मुश्किल था। लेबॉर्ट्रीज़ को खोलने के लिए वहाँ पर बहुत सारा सामान पहुँचाना ज़रूरी था, लेकिन ये सब विषम परिस्थितियों में भी सारे देश ने किया। आज इतनी बड़ी संख्या में लेबॉर्ट्रीज़, 1 मिलियन से ज़्यादा रोज़ के टेस्ट, 9-10 करोड़ हम पूरे भारत में टेस्ट कर चुके हैं। जो किट्स बहुत महंगी विदेशों से लेनी पड़ती थी शुरुआती दौर में, वो अब सब हमारे भारत में रोज़ के 10 लाख से ज़्यादा किट्स जो है हमारे यहाँ भारत में बन रहे हैं। और अभी भी नए नए किट्स रोज़ वैलिडेट होते हैं, रोज़ उनका रिसर्च हो रहा है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं लगातार आप सब उनके साक्षी हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में भी भारत ने इस लड़ाई को लड़ा, और उसी का परिणाम ये है कि आज
सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ा, सारी सरकार ने मिलकर लड़ाई लड़ी, सब लोग खड़े हो गए। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि सारे देश का दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है। हमारे 87 से 88% के बीच लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुनिया में सबसे कम हमारा मोर्टालिटी रेट, फैटालिटी रेट है 1.52%, इतना कम किसी का नहीं है। और ये तब है जब देश की जो आबादी है वो 135 से 140 करोड़ के बीच में है। 1.35 to 1.4 बिलियन आबादी वाले देश में जितनी इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी दूर दूर पर अलग अलग तरह का सिस्टम है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने यूटीज़ हैं और इतनी व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ कंट्रोल करना और एक ही वेवलेंथ पे एक लड़ाई को लड़ना। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके लिए सैकड़ों गाइडलाइंस तरह तरह की बनाई, सैकड़ों इंस्ट्रक्शंस इशू किए, सैकड़ों वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किए और अभी भी वो सारे काम लगातार उसी प्रकार से चल रहे हैं। और हर पैरामीटर के ऊपर दुनिया के किसी भी विकसित देश से बेहतर भारत का परफॉर्मेंस है। ये ज़रूर है कि इस बात का हम सबको दुख है कि इसमें बहुत सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स शहीद हो गए। एक प्रकार से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, बहुत सारे पुलिसकर्मी, इस तरह के लोग जो फ्रंट पर ये लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन इस बात का भी संतोष है कि और गर्व भी है कि इतने महीने के बाद भी कोई भी देश में ऐसा कोरोना वॉरियर नहीं है कि जो घर में अभी बैठ गया हो। लोग थक भी गए हैं तो भी घर में कोई नहीं बैठा है और फ्रंट से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी देश में माँ नहीं है जिसने अपने बच्चे को कहा हो कि अब तुम जाना बंद करो अस्पताल में जाने के अंदर इस प्रकार का खतरा है, तुम्हारा प्राण भी खतरे में पड़ सकता है, तुम हमारे लिए भी खतरा घर में ला सकते हो। ऐसी एक भी माँ सारे देश के अंदर नहीं मिली। ये एक प्रकार से बहुत ही पॉजिटिव साइंस है इस सारे कोविड के ख़िलाफ़ जंग के। अभी जिस प्रकार की परिस्थिति है इसमें जो एक सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण डायग्नोसिस की दृष्टि से बात ध्यान में आती है, कोविड का वायरस भले ही एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से उसका ट्रांसमिशन होता है, लेकिन ये भी बात ध्यान में आई है कि समय पर उसका अर्ली टेस्ट हो जाए, अर्ली उसकी ट्रैकिंग हो जाए, अर्ली उसके कॉन्टैक्ट्स डायग्नोज हो जाएं, उन कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग हो जाए, उनका अर्ली आइसोलेशन हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए, उनका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो मोटे तौर पर उनके प्राण की रक्षा की जा सकती है। अभी जिन लोगों के प्राण गए भी हैं, ये भी ज़्यादातर उनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ थी, बड़ी बीमारियां थीं और वो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग बड़ी उम्र के और ज़्यादातर इस प्रकार के पाए गए हैं। यंग लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब हमको समझ में आया है कि कोविड भले ही तेज़ी से फैलता है, लेकिन सही प्रिकॉशंस लेने पर ये लोगों के प्राण की रक्षा भी की जा सकती है, कोविड के ख़िलाफ़ जंग को और मजबूत भी किया जा सकता है और इसको लड़ने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इतने दिन में 3 ही 4 बातें सारे दुनिया को समझ में आई हैं कि अगर ठीक ढंग से मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जैसे मैंने मास्क को नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर ढका हुआ है, बातचीत करते समय पे भी मास्क को अपने मुंह से नाक से ना हटाया जाए और इसके साथ साथ जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, इसको अगर बरकरार रखा जाए अपनी डे टू डे लाइफ में और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से, पानी से हम धोते रहें, जहाँ साबुन पानी नहीं उपलब्ध है अगर कोई सैनिटाइज़र है उससे हम इसको स्वच्छ और सैनिटाइज़ करते रहें
और थोड़े से इस प्रकार के एटिकेट्स का ख्याल रखें कि भाई जिनको हम रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं कि खांसते समय, छींकते समय अपने हाथ को हम इस प्रकार से अपने एल्बो से जो है हम उसको कफिंग और स्नीजिंग की एक्टिविटी को वो दूसरे को प्रभावित ना करे तो दूसरी तरफ मुंह करके हम करें। अपने हाथ को मुंह पर, नाक पर ना लेके जाएं। यही 3, 4, 5 बातें ध्यान में आई है। और उसके साथ साथ बड़ी बात ये ध्यान में आई है जो खासकर अनलॉक के बाद ध्यान आई है कि अनलॉकिंग का मतलब देश में बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है कि कोविड के खिलाफ जंग ख़त्म हो गई है। अब अनलॉकिंग का मतलब है कि घर से बाहर निकलो, जहाँ मर्जी जाओ, बड़ी से बड़ी गैदरिंग में जाओ, खूब फंक्शन करो, हर भीड़ भाड़ के अंदर खुलेआम पार्टिसिपेट करो। मन में आए तो मास्क लगाओ, मन में ना आए तो मास्क मत लगाओ। आधा अधूरा गलत तरीके से मास्क को लगाओ, बार बार मास्क को नाक से नीचे भी ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो आदतें समाज के अंदर दिखाई दे रही हैं इस समय, ये जो लापरवाही है और ये जो कैजुअल बिहेवियर है, ये शायद कोविड से भी बड़ा खतरा है हमारे ख्याल से। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि अब सारे देश को मिलकर दोबारा से एक जन आंदोलन की भावना से इस काम को करना है कि समाज में हर व्यक्ति को हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने के लिए दोबारा से स्मरण कराएं, दोबारा से प्रयास करें। आप जानते हैं कि पहले ही दिन से हमने सारे देश को शिक्षित करने के लिए सारे कम्युनिकेशन के तरीके इस्तेमाल किए। 117 करोड़ से ज़्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर्स मोबाइल के, उनको हमने पहले दिन से ही, आपने देखा कि कॉलर ट्यून में जो मैसेज आता है, और आज उस मैसेज को तो बीच बीच में हम बदल बदल के समय के अनुरूप उस मैसेज को देते रहे हैं। आज जो मैसेज दे रहे हैं वो मास्क को पहनने से ज़्यादा हम कह रहे हैं मास्क को ठीक से पहनो। आज उस मैसेज को अमिताभ बच्चन साहब दे रहे हैं और दिन में 3 बार 4 बार जो है वो लगातार, जितनी बार भी आप फ़ोन को उठाकर कान पर लगाते हैं आपको वो मैसेज मिलता है। देश के बच्चे को पहले ही दिन से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के बाद लोगों को शायद इसकी गंभीरता का जो आभास है उसके अंदर कमी आई है देश के अंदर, क्योंकि अब लाखों के अंदर शायद संख्या लगभग अब 50 और 60 लाख के बीच में संख्या है जो रोज़ बदलती है, जो लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। तो लोगों को अपने आसपास बहुत सारे लाखों लोग दिखाई देते हैं कि ये तो कोविड हुआ था, ठीक हो गया। लोगों को लगता है कोई बड़ी खतरे की बात नहीं है, और इसके कारण जो है, और फिर दूसरे को देखते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये भी तो बिना मास्क के दिख रहा है। वो हम साइंस की लेबॉर्ट्री में गए थे, वहाँ डायरेक्टर साहब ही ने नहीं मास्क लगाया हुआ था, वहाँ कोई वैज्ञानिक ने नहीं लगाया हुआ था। अस्पताल में गए, वहाँ डॉक्टर ने ठीक से मास्क नहीं लगाया था। तो लोगों को लगता है जब ये पढ़े लिखे लोग भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी इतनी अब आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि जो मैसेज ऊपर से जाता है वही नीचे तक ट्रैवल करता है, और जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर वाले को जो है देखते हैं। इसलिए दोबारा से ये बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि भाई हम समाज में अपने सभी जिम्मेदार लोगों को, संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को, डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को, सब लोगों को इन्वॉल्व करें, सबको लीडरशिप रोल में लाएं, और उसके माध्यम से हम जो है दोबारा से इसका एक आंदोलन विकसित करें। ये चारों पांचों चीज़ें जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मैं इनको सोशल वैक्सीन कहता हूँ। अभी जब तक रेगुलर वैक्सीन नहीं आएगी, ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है मास्क और ये प्रिकॉशंस। तो तब तक हम इस सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल समाज के लोगों को ठीक से कराएं तो शायद, और विशेषकर जो आने वाला जो 2-3 महीने का समय है ये देश के लिए और भी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसमें विंटर्स भी आएंगे। विंटर्स में रेस्पिरेटरी वायरसेस के बारे में सामान्यतः ये मान्यता है कि शायद ये और ज़्यादा तेज़ी से इनका प्रकोप हो सकता है, लेकिन उसको भी काउंटर करने के लिए हमारे पास स्वयं भी एक
सोच है और एग्रीमेंट है, ऑब्जर्वेशन है कि हमने फरवरी और मार्च का महीना भी देखा है जब हम लोगों ने, भारत ने सर्दी के मौसम में भी इसको डील किया है जनवरी में, इसलिए उससे कोई घबराने का कारण नहीं है। और कोई बहुत बड़ा प्रकोप हमें जनवरी, फरवरी और मार्च में उसका दिखाई भी नहीं दिया। इसलिए कोविड नया वायरस है, ये सर्दी का इस पे प्रभाव होगा नहीं होगा, कितना होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम मान के चलें कि ज़्यादा भी होगा, इसलिए हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। और दूसरा जो अभी देखने में आया कि एक आध स्टेट्स के अंदर, जैसे हमने केरल में देखा कि वहाँ पर अभी एक फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, बहुत सारे लोगों ने फेस्टिवल्स में लापरवाही की, और उसके परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिला वहाँ जो केरल शुरुआती दौर में सबसे अच्छा देश में परफॉर्म करता था, उसमें आज इतना तेज़ी से केसेस का बढ़ोतरी हुआ है। तो सारे देश के लिए अभी आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं, खासकर अभी कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, दशहरा, दीपावली और बहुत सारी, अभी क्रिसमस आएगा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। सभी जो धर्म को मानने वाले लोगों के कोई ना कोई फेस्टिवल्स आएंगे। इसलिए सबको ये भी बार बार बताना बहुत ज़रूरी है कि अपने फेस्टिवल्स को मनाते समय कोशिश करें कि हम ज़्यादातर अपना मनाने का काम है अपने घर में, अपने परिवार के साथ करें। बाहर जो है अगर हमारे को मजबूरन कहीं जाना भी पड़ता है तो हम ये जो सोशल वैक्सीन है इसको कभी ना भूलें, जो प्रिकॉशंस लेनी है उनको कभी ना भूलें, गाइडलाइंस के बाहर ना निकलें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस नाते ये जो आज की मीटिंग है इसका पर्पस बड़ा स्पष्ट है। आप सब देश के विभिन्न प्रांतों में, इलाकों में आप काम कर रहे हैं, और एक साधारण व्यक्ति का कहना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक जब किसी साइंस के इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर देश के लोगों को, समाज के लोगों को अपील करता है, तो आप अपने अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अपने शहर में, अपने इलाके में कैसे इसको आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके अपने कोर ग्रुप के साथ बैठकर एक योजना बनाइए। इसको कैसे आगे डिसैमिनेट करना है उसको डिसैमिनेट करिए। और समाज में ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो एक व्यक्ति को अगर आप कन्विंस करें तो उसके माध्यम से आप सैकड़ों लोगों तक वो बात पहुंचा सकते हैं। मेरा अपना जो 26-27 साल पहले का जो दिल्ली में पोलियो उन्मूलन का जब काम शुरू किया था उसका जो अनुभव है, उसमें से अगर 2-4 बातें ही मैं शेयर करूं तो दिल्ली के अंदर 516 गुरुद्वारों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे एक व्यक्ति के साथ एक घंटे की मीटिंग करनी पड़ी। दिल्ली की 3000 मस्जिदों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे 2 व्यक्तियों के साथ एक घंटे की 2 मीटिंगें करनी पड़ी। सारे चर्चेस को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे एक व्यक्ति के साथ 1 घंटे की 1 मीटिंग करनी पड़ी। और इसी तरह से सारे मंदिरों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे एक समिति के लोगों के साथ 1 घंटा बैठ के मीटिंग करके उनको इंस्पायर करना पड़ा। दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए 2-3 मीटिंगें डायरेक्टर एजुकेशन के साथ करनी पड़ी और हमने धीरे धीरे करके एक योजना बनाई। ये सिर्फ मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आप भी अपने अपने सिस्टम्स में देखिए कि कैसे कभी कभी हट के थोड़ा सा आप अपने इंस्टीट्यूशंस में जिम्मेदार ऐसे लोगों को सोसाइटी के बुलाइए, उनको चाय पर बुलाइए, उनसे बातचीत करिए, उनके थ्रू इसको आंदोलन को अपने शहर में विकसित करने के लिए योजना बनाइए। और इसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ती है और ज़रूरी समझे तो मुझे लगता है करने में भी कोई हर्जा नहीं है। अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप लोग खुद उसको एड्रेस करिए और उसके माध्यम से वहाँ के लोगों को आप अपील करिए कि कुछ नहीं हम आपसे मांगते हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर यही मांगते हैं कि इस फेस्टिवल के सीज़न में प्रिकॉशंस अच्छी तरह लेना है और आपको ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। सड़क पे भी आप जाते हैं, किसी को देखते हैं कि वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा है, आप उसको रोक के टोकिए। आपके जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको भी टोकिए, अपने कर्मचारियों को टोकिए, अपने वैज्ञानिकों को टोकिए। ये एक्चुअली आपको आदत डालनी पड़ेगी।
मैं अभी जब सुबह घर से निकलता हूँ तो ये मास्क को इस तरह से लगा के निकलता हूँ, और उसके बाद जब घर में रात को घुसता हूँ तभी मैं इस मास्क को उतारता हूँ। उसके पहले मैं मास्क को नहीं उतारता। और मैं बड़े विश्वास के साथ इसलिए कहता हूँ कि अगर 9 महीने मैंने अपनी कोविड से रक्षा की है, सारे अस्पतालों में भी गया हूँ, कोविड के वार्ड्स में भी गया हूँ, कोविड के गंभीर रूप से पीड़ित मरीज़ों से भी बात करके आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी ने मेरी रक्षा की है तो इस मास्क ने की है, इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ने की है, जिसने कि सारी विषम परिस्थितियों में भी हमको जो है सुरक्षा प्रदान की। इसी संदेश को बार बार सभी तक पहुंचाना है। आज की मीटिंग हमारी केवल इसी लक्ष्य को आपके माध्यम से सोसाइटी में कैसे हमने पहुंचाना है, इसके पर्पस से है। कल हमने यहाँ पर सारे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं देश भर के, और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े अस्पताल हैं उनके हेड्स के साथ मीटिंग की थी। इसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन के लोगों से किया, उनका भी साइंस में योगदान बहुत है, और उनके इसी तरह से हम डेली जो है अलग अलग वर्ग के अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और खाली हम नहीं, सरकार में सभी लोगों से प्रधानमंत्री जी की अपील है कि ये अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय का काम नहीं है, ये सारे देश का, सारे समाज का काम है। तो आप अपने स्तर पर बड़ी मात्रा में स्वयंसेवी संस्थाओं को और जिनको भी आप उचित समझते हैं उनको सबको इन्वॉल्व करिए, और आने वाला जो समय है उसके अंदर अपनी रूटीन साइंटिफिक वर्क में से कुछ एक सिग्निफिकेंट समय इस आंदोलन को अपने अपने शहर में आगे बढ़ाने के अंदर आप खर्च करें। यही मेरी आपसे विनम्र निवेदन और अपील है। और अगर किसी को कुछ 2-4-5 मिनट अगर कोई ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. दो चार लोग कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो If any of us would like to submit anything or would like any कोई further सजेशन देना चाहते हैं, suggestion हो, or if you need any other advice, if you have anything that you would like to learn more about, please feel free to do it now. हाथ खड़ा करें जो भी अगर कोई। आप अपना माइक अनम्यूट करके हाथ खड़ा बोल दें। आप हैंड रेज, हाँ इसमें हैंड रेज, हाँ हैंड भी है, हाँ you can raise your hand and please speak. ज़रूरी भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बोलना ज़रूरी है, कोई अगर कहना चाहते हैं तो ठीक है। मंत्री जी is saying it's not necessary to invent a question, but if you have a question. नहीं, आपके अगर किसी के मन में कोई ऐसा नेचुरल विचार आता है जो आप इस समय अपने सभी साथियों के बीच में व्यक्त करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू डू दैट। अदरवाइज तो आप बस अच्छी तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ाइए तो हमारा पर्पस पूरा हो गया। Yeah, please go ahead. Please go ahead. So this is Ramesh from IIG, Bombay. Yes. I have a small suggestion. Is it possible to make some very short films of 2 or 3 minute durations on the awareness campaign about COVID-19 to be distributed among school children through the science outreach programs of the institute? All types of mechanisms of communication are being tried, but you can invent, innovate, or you can add anything to over and above whatever is happening in the country. You are free to do whatever there are hundreds and thousands of ways to further supplement and you can say better whatever efforts are going on. Every ministry is right now involved. So you can certainly go ahead with anything that you feel is important. Thank you, sir. In vernacular medium, we would like to do it in a district like Raigarh, which is a very backward district in Bombay, near close to Bombay. Yeah, thanks.
Dr. Prasad, please go ahead. So this is Vandana Prasad. मैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेलो साइंसेस से बोल रही हूँ। सर हमारे यहाँ टेस्टिंग चल रही थी और सिंस मई से हमने टेस्टिंग स्टार्ट करी थी, वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमारे करीब टेस्टिंग हम रेगुलर टेस्टिंग करते थे अपनी साइंटिफिक स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सभी स्टाफ की। 50 लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव हुए थे और वो सब सारे लोग जो है वो नॉर्मल थे, सब नेगेटिव है इस समय। बट सभी को कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, किसी को लिवर का इशू हो गया है, किसी की शुगर बढ़ गई है, किसी की डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई है। सो हम लोग योगा का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से सभी को, जिससे हेल्थ बेनिफिट मिल सके और हमें लगता है कि शायद इससे काफ़ी फायदा होगा लोगों को। देखिए, ये योगा वगैरह तो सब कुछ रूटीन में भी आप जो भी चीज़ें इस तरह की प्रमोट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल्सो प्रमोट करिए। और अगर कोई पोस्ट कोविड कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपके ध्यान में आती हैं तो एटलीस्ट बिकॉज ICMR इज़ स्टडिंग ऑल दोज इश्यूज़ कि कोई पोस्ट कोविड कोई सीक्वली, अभी हमने काफ़ी एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए हैं जो पोस्ट कोविड सीक्वलीज़ को ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जानते हैं नया वायरस है तो साइंटिफिक इसकी स्टडीज़ हो रही हैं। तो यू रिमेन इन टच विद द पीपल हु आर कंडक्टिंग सच ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। ठीक है, थैंक यू। So can you just throw some light on the vaccine, status of the vaccine? Can you throw some light on the vaccine, status of the vaccine? See, right now, if I have to tell you that right now all over the world there are 9 vaccines which are in the advanced stages of the clinical trials. Out of them, 3 vaccines are in India itself, and out of those 3 vaccines, 1 vaccine is in the advanced stage of clinical, means third stage, stage 3 trials. 2 vaccines are in the, you can say, phase 2 trials right now, probably at an advanced stage. And we are expecting that in the next 2 to 3 months we should be able to have vaccine developed and produced by our own indigenous sources. And as per our planning and preparations, I had in fact answered one question in my new program Sunday Samvad also. We are expecting that by July of the next year 2021 we should be able to have 400 to 500 million doses of vaccine available for our countrymen, through which, because it has to be given at least 2 times on a gap of at a gap of 14 to 28 days, that will all be finalized later. So we expect to immunize about 20 to 25 crore people by July. That is our planning, and right now, as per whatever indications are available, we hope that we should be able to accomplish this particular target. The government at the moment is in fact trying to make a list of the priorities, who are the people who have to be prioritized in these 20 to 25 crore list. Of course, the healthcare workers and the frontline workers, they would be the foremost, and you can say the slightly older people with morbidities, they will all be prioritized. But that's all in the process of, you can say, getting crystallized, and the states have all been taken on board. Lists and all are the process for making lists, etc., of those who need to be prioritized, and all that is all. You see, there is simultaneous preparations are going on that front.
what we have to do 6 months from now, we have already started the preparations right now, and there is an expert group with Dr. V.K. Paul, one of the members of the Niti Aayog, and our health secretary, who are the two, you can say, people heading that group. So this all, and the Prime Minister himself is monitoring everything along with our department people. So that's the latest on this particular front. Dr. Rakesh Mishra, please go ahead. I just wanted to just add, Mantriji is really expert of vaccine, but the question that Mr. is asked, we are often asked. And I think we should stick to what our minister just said, that social vaccine is the solution today. We will have vaccine after 6 months, but we still don't know how effective the vaccine is. These are experimental, and government is fully prepared, happening to see. But the how good the vaccine will be, time will go. So I think we should not at all relax because the vaccine will come sooner or later. Our expect is what he said, that mask, social distancing, and hygiene is the only thing that we said. Otherwise, in 6 months, damage will be tremendous. So I think we should, vaccine people are working, they will do. We have to focus on 3 things which we were told today. Drug and vaccine probably will be much later. Weapons today don't have those weapons, and we have to fight this without those 2 things. With these, our social vaccine is the only way we have today. So let us not at all depend and dilute this what we are just beginning today. I just thought that I felt very strong from this. Mantriji can maybe correct or add to this. No, you are perfectly all right. Means your statement is perfect, absolutely perfect, and you are on the same plane with what actually needs to be done. And we can't relax even for a moment. That is why this meeting is there, because of the you see importance of using the social vaccine right now, because the people had started relaxing. That's why we don't want any complacency at any front. So you have rightly pointed out the exact thing that needs to be sort of underlined. Thank you. Any other raised hand? Any suggestion or any question? This is one last chance. Okay, so I want to thank everyone who joined us today, all the heads of CSIR and DST institutions, and as was the instructions of Honorable Minister that if we spearhead this movement in our community, in our institute, and around it, and take help from other organizations that can strengthen this campaign, that would go a long way in helping everybody. So thank you, and all of us, behalf of all of us, we thank the Minister for sharing all the insights with us, which are very compelling insights, and we just have to spread them far and wide. And then I wish that everybody comes out of it all hale and hearty, us and our families. Thank you very much for being here. Thank you. Namaskar, Jai Hind. Namaskar, thank you. Namaskar, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Namaskar.